हरे कृष्ण। भगवद गीता। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा गोपी जन वल्लभ जय जय गोपी जन वल्लभ जय यशोदानंदन ब्रज जनरंजन जय यशोदा नंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा बनचारी तीरा राधा माधव कुंज माधव कुंज गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Jaya Nitai, Gaura Nitai, Gaura Gaura Nitai, Nitai, Gaura Nitai, Jaya Jagatnath, Jaya Baladeva, Jaya Masubhadra, Jaya 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 Jagatnath, Jaya Jagannath, Baladeva, Jaya Jaya Masubhadra, Masubhadra, Jaya Gopala, Jaya Nandalala, Gopala, Jaya Nandalala, Jaya Jaya Gopala, Nandalala, Jaya Panchatattva, Jaya Panchatattva, Panchatattva, Jaya Panchatattva, Jaya Jaya Panchatattva, Panchatattva, Jaya Panchatattva, Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya 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 Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Prabhupada. जय श्री श्री योग धर्म हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। जय श्री श्री हरिनाम प्रभु की जय। निताय गौर जय श्रील प्रभुपाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु
नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतं सेवया भागवते उत्तमश्लोके भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके भक्तिर्भवति नचिकेते विष्णुपादाय भूतले कृष्ण कृष्ण श्रीमते भगवते भक्तिवेदान्त श्रीमती स्वामी वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वते नमस्ते गौरवाणी सरस्वती प्रचारिणे गौरवाणी निर्विशेष प्रचारिणे शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंदे तां कृपा सिंधु वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवे जय श्री नमो कृष्ण चैतन्य प्रभु जय श्री नित्यानंद कृष्ण श्री चैतन्य प्रभु अद्वैत नित्यानंद गदाधर श्री शिवासादि गौर श्री भक्त वृंद गौर हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 Reading from Srimad Bhagavad Gita. Hare Krishna, Arvind Prabhu. Reading from Srimad Bhagavad Gita, as it is chapter 2, contents of Gita summarized, text number 60. यततो ह्यपि कौन्तेय यततो हि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीने इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः हरन्ति प्रसभं Translation and purport by His Divine Grace of Charanaravindra Bhaktivedanta Swami Maharaj. Srila Prabhupada ki jai. Translation: The senses are so strong and impetuous, O Arjuna, that they forcibly carry away the mind even of a man of discrimination, who is endeavoring to control them. Purport: There are many learned sages, philosophers, and transcendentalists who try to conquer the senses. But in spite of their endeavors, even the greatest of them sometimes fall victim to material sense enjoyment due to the agitated mind. Even Vishwamitra, a great sage and perfect yogi, was misled by Menaka into sex enjoyment. Although the yogi was endeavoring for sense control with severe types of penance and yoga practice. And of course, there are so many similar instances in the history of the world. Therefore, it is very difficult to control the mind and senses without being fully Krishna conscious. Without engaging the mind in Krishna, one cannot cease such material engagements. A practical example is given by Sri Yamunacharya, a great saint and devotee, who says, Yadavadhi mama chitta Krishna padaravinde नवनवरषधामन्युद्यतं रन्तुम् आशे तदवधीवत नारिसङ्गमे स्मर्यमाणे
भवति मुखविकारः शुष्टु निष्ठिवनं च. Since my mind has been engaged in the service of the lotus feet of Lord Krishna, and I have been enjoying an ever new transcendental humor, whenever I think of sex life with a woman, my face at once turns from it, and I spit at the thought. Krishna consciousness is such a transcendently nice thing that automatically material enjoyment becomes distasteful. It is as if a hungry man had satisfied his hunger by a sufficient quantity of nutritious eatables. Maharaj Ambarish also conquered a great yogi Durvasa Muni simply because his mind was engaged in Krishna consciousness. Savai manah Krishna padaravindayor vachamsi vaikuntha gunan varnane. Hare Krishna. A beautiful verse, and a lot of teachings are involved in it. Yesterday we discussed if we want to be free from the inferior taste, then we must seek for higher taste. When we achieve the higher taste, automatically the lower taste will vanish from us. So therefore we should always hanker for higher taste, not the lower taste. And whatever हम लोग जो भी कुछ इस भौतिक जगत में देख रहे हैं वो सब लोअर टेस्ट. क्यों लोअर टेस्ट? क्योंकि we want to enjoy matter. हम लोग डेड मैटर को एंजॉय करना चाहते हैं, इसलिए लोअर टेस्ट है. इस टेस्ट में क्या होता है? ग्रेजुअली वी सफर फ्रॉम दिस टेस्ट. हम लोग प्रभुपद कई बार एग्जाम्पल दिए, हम लोग आगे भी पढ़ेंगे. भगवद गीता में कृष्ण बता रहे हैं श्रेयस और प्रेयस. प्रेयस क्या है? प्रेयस वो है जो हम लोग टेम्पररीली हम लोगों को बड़े आनंद प्रदान करता है थोड़ी देर के लिए. इट गिव्स अस टू मच प्लेजर. जब हम शुरू करते हैं कोई चीज करना तो उसमें हम हमारे इंद्रियों को बड़ा सुख प्रदान करता है. फिर धीरे धीरे वो दुख में कन्वर्ट होता है. इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू सफरिंग. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा सपोज है, उसको खेलने में बड़ा पसंद है, खेलता रहता है दिन भर, लेकिन उसके पिता माता तो जानते हैं, बोलते हैं अरे खेलो मत, पढ़ाई करो, एग्जाम आ रहा है, पढ़ाई करो. लेकिन वो अगर नहीं सुनता है, उसी खेल में लगा रहता है, उसको आनंद तो प्राप्ति होता है वो खेल से, लेकिन आगे जाकर उसको दुख प्राप्ति होती है. आगे जाकर जब एग्जाम में फेल हो जाता है तब उसको बड़ा दुख प्राप्ति होती है. तो इसलिए श्रेयस को हम लोगों को अडॉप्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए. श्रेयस क्या है? शुरू में ये बड़ा दुख देता है क्योंकि ये हमारे भौतिक इंद्रियों को आनंद प्रदान नहीं करता है. लेकिन धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं उसमें, फिर ये धीरे धीरे हमको इतना आनंद प्रदान करता है, हाँ, कोई भी उससे हम लोग
कोई भी चीज उससे आगे नहीं, बहुत आनंद प्रदान करता है। जैसे वही एग्जाम्पल हम लें, एक बच्चा है उसको अगर वो खूब पढ़ेगा, दिन रात मेहनत करेगा, कष्ट तो होगा, लेकिन एग्जाम का रिजल्ट आएगा तो नंबर 1, कितना खुशी होता है। तो एग्जैक्टली हमारे साथ भी वैसे ही होता है। हम लोगों को जो कृष्ण बता रहे हैं भगवत गीता में, अगर हम उसको थोड़ा सा कष्ट करके मान ले, उसको हमारे लिए जीवन में उतार दें, उसको थोड़ा कष्ट करके, तो आगे चल के कोई भी दुख नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, हमेशा सुख ही सुख। लेकिन अगर उसको नहीं मानकर हम हमारे इंद्रिय तृप्ति में लगा रहेंगे, आज सोने के लिए बड़ा इच्छा है, सो जाते हैं। सर तो बोले हैं भगवत गीता करने के लिए, कौन करेगा, छोड़ो क्या करना है, सो जाते हैं, थोड़ा ठंडा भी है मौसम, हाँ सो जाते हैं, फिर नींद नहीं खुलती है, हाँ फिर भगवत गीता क्लास मिस हो गया, फिर उठ के गए, फिर परेशानी और शुरू हो जाती है। इसलिए शास्त्रों के हिसाब से हम अगर हमारा दिनचर्या अति सुबह शुरू करते हैं, बड़ा आराम से हमारा दिन कटता है रात तक। जितना आलसी करेंगे उतना प्रॉब्लम। तो इसलिए कृष्ण बोलते हैं हायर टेस्ट में मन लगाना चाहिए हमको, जो शास्त्रों में बताया गया है, भक्ति में हमारा मन को लगाना चाहिए, कृष्ण भक्ति में, चैंटिंग में, भक्त लोगों के संग रहकर चैंटिंग करना, भगवत गीता का श्रवण करना, हाँ भगवान भक्ति में लगे रहना, अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ना, फिर हमारा कर्म करना अच्छे से ध्यान पूर्वक, फिर हम लोग आगे जाके सक्सेसफुल हो सकते। तो कृष्ण बोले हायर टेस्ट में हमको मन लगाना चाहिए, लोअर टेस्ट में मन लगाना नहीं चाहिए, तो उससे हम लोग परे हो सकते हैं, लोअर टेस्ट से आगे जा सकते हैं जब हम हायर टेस्ट को अचीव कर लेंगे। लेकिन इस प्रयास में कृष्ण बोल रहे हैं, ये जो प्रयास हम लोग करते हैं हायर टेस्ट के लिए, बीच में भी कभी कभी फेल्योर होता है। वो फेल्योर कैसे होता है यहाँ कृष्ण बता रहे हैं, लेकिन वो फेल्योर में हम लोगों को डगमगाना नहीं है, उसमें स्टेडी रहना पड़ेगा। कभी कभी फेल्योर होता है, लेकिन फिर भी हमको थोड़ा सा डिटरमिन्ड होके आगे बढ़ना चाहिए। एक एग्जाम्पल है प्रभुपाद भी दिए, हम लोग पढ़े उसको। तो यहाँ कृष्ण बोल रहे यथा तो ही अपि कौन्तेय, जो इस एंडीवर में प्रयास करते हैं, जो इस हायर टेस्ट को पाने के लिए प्रयास करते हैं, ट्रांसेंडेंटल प्लेजर के लिए प्रयास करते हैं, हाँ उनको क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, बड़े बड़े व्यक्तित्व, जो अच्छे अच्छे व्यक्ति इस प्रयास में भी थोड़ा थोड़ा फेल हो चुके, फेल हुए लेकिन फिर वो फाइनली सक्सेस भी हुए, ऐसे नहीं कि फेल होके रह गए। क्योंकि कृष्ण पहले बताए हैं 2.40 में हम लोग पढ़े थे, हाँ पढ़े थे, जो व्यक्ति इसमें एंडिवर करेगा उसको सक्सेस ही सक्सेस है, फेल्योर तो होता है लेकिन सक्सेस श्योर है। हाँ स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया, कृष्ण बताए, हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी से 40th वर्ष में। जो इस प्रयास में रहेगा, हमेशा कोशिश करते रहेगा, उसका सक्सेस गारंटेड है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो इसलिए इसमें एंडीवर हम लोगों को करना चाहिए हमेशा, चाहे कितना भी फेलियर हो, चाहे हमें आज नहीं उठ पाया भगवत गीता क्लास के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ लेकिन मन में बड़ा दुविधा होना चाहिए कि इसमें बड़ा अच्छा काम करना मैंने मिस कर दिया, ये अफसोस अगर हमारे अंदर आए तभी भगवान हमको आगे रास्ता दिखाते। अगर हमारे मन में कोई अफसोस नहीं, अरे ठीक है भगवत गीता क्लास मिस हो गया कोई बात नहीं, छोड़ो,
क्या है उसमें? अगर कोई अफसोस नहीं है हमारे मन में तो भगवान हमको आगे नहीं लेंगे। इसलिए अफसोस करना चाहिए, अच्छी चीज पाने के लिए अफसोस करनी चाहिए। हाँ, भक्ति प्राप्ति करने के लिए अफसोस करनी चाहिए मन में, ओह ये कितना बड़ा प्रोग्राम, कितना बड़ा अच्छा ये मिस कर दिया, भक्त लोगों का संग मिस कर दिया, भगवत गीता का पाठ मिस कर दिया। उसमें अगर अफसोस ग्लानि होगा हम लोगों को तो कृष्ण हमको ऑटोमेटिक आगे बढ़ाते ले जाएंगे, जबकि हम लोग क्वालिफाइड नहीं है उस चीज में। तो यहाँ पे कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को कि एंडिवर जो करते हैं, जो प्रयास करते हैं इस प्राप्ति करने के लिए हायर टेस्ट को, उसमें कभी कभी बड़े बड़े व्यक्तित्व भी फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मना। ये जो इंद्रियां हैं ये हमारे मन को हरण करके ले जाता है। कैसे ले जाता है? जैसे एक विंड जो है, जैसे विंड बहा के ले जाता है अरोमा को, हाँ? They forcibly carry away the mind even of a man of discrimination who is endeavoring to control them. ऐसे ही वो बहाकर ले जाता है। कौन? इंद्रियां हमारे मन को ले जाता है। तो इसलिए इंद्रियों को सही ढंग से यूज करना ही भक्ति कहलाती है। कृष्ण के सेवा में एंगेज करने के लिए भक्ति कहते हैं। हमारे रूप गोस्वामी इसलिए बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ऋषिक मीन्स इंद्रियां। हमारी इंद्रियां को अगर हम जो इंद्रियों के स्वामी हैं उसके सेवा में अगर लगाएंगे तो इंद्रियां ठीक रहेगी, नहीं तो इधर उधर भागते रहेगी। ऋषिकेण ऋषिकेश, इसलिए कृष्ण के नाम है ऋषिकेश। ही इज द मास्टर ऑफ द सेंसेस, इंद्रियों के स्वामी है। उनके सेवा में अगर हमारे इंद्रियां लगा रहा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, मैं कल भी बताया था हमारे जीवा से शुरू होता है। टंग इज द फर्स्ट वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस, इट शुड बी कंट्रोल्ड फर्स्ट, बिकॉज थ्रू द टंग वी स्पीक and what we speak it determines our characteristic. इसलिए जिह्वा को कंट्रोल करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले by chanting this हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे। जिह्वा को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हम लोग अगर हरे कृष्ण महामंत्र का जप रोज करेंगे, डेली अभ्यास करते हुए, 1 माला 2 माला 3 माला 4 माला, प्रभुपाद तो बताएं 16 माला करने के लिए, जो जितना कैपेसिटी अगर करें, ग्रेजुअली वी कैन कंट्रोल आवर टंग। जब करेंगे फिर प्रसाद हम लेंगे, फिर हम लोग अनाप शनाप गपशप नहीं करेंगे, कभी अनाप शनाप बातचीत नहीं करेंगे कभी, हाँ? इवन किसी को गाली देंगे तो मन में दुविधा होता है, ओ मैंने गाली दे दिया किसी को, हाँ कितना बड़ा पाप कर दिया, हाँ ऐसे हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों को पहले हमारे जिह्वा को कंट्रोल करना चाहिए। तो इसलिए हमारे जो इंद्रियां हैं हमारे मन को खींच कर ले जाती है। तो ऐसे एक एग्जाम्पल प्रभुपाद यहाँ दिए हैं, विश्वामित्र मुनि। विश्वामित्र मुनि के बारे में सब लोग जानते हैं। विश्वामित्र मुनि एक क्षत्रिय थे। यद्यपि वो क्षत्रिय थे लेकिन वो वशिष्ठ मुनि के जो पराक्रम को देखकर उन्होंने भी निश्चित किया कि मैं भी ब्रह्मर्षि बनूंगा। तो उन्होंने कोशिश किया, घर द्वार छोड़ दिए, अपना राजपाट छोड़ के जंगल में चले गए और बड़े तपस्या करने लगे, भयानक तपस्या।
इतना तपस्या किए। ऐसे बताया गया शास्त्रों में 60,000 साल तक उन्होंने तपस्या किया, क्योंकि सत्ययुग में मेडिटेशन ही युग धर्म था। जैसे युग धर्म वैसे ही करते थे बड़े बड़े युग। कलयुग का युग धर्म क्या है? संकीर्तन यज्ञ। तो इसलिए संकीर्तन यज्ञ हमेशा करनी चाहिए कलयुग में। जो जिस टाइम का युग धर्म है वैसे ही करना चाहिए। तो सत्ययुग में युग धर्म था मेडिटेशन। उस समय आयु भी बड़ा था, 1 लाख साल तक आयु था। तो इसलिए विश्वामित्र मुनि 60,000 साल तक तपस्या किए थे अपना परफेक्शन पाने के लिए। तो उस तपस्या के बीच में ये जो एंडीवर था, ये जब प्रयास कर रहे थे अपने परफेक्शन को पाने के लिए, कई उनको फेल्योर का सामना करना पड़ा, लेकिन वो उसमें डगमगाए नहीं। फेल्योर तो हुआ लेकिन फिर आगे भी बढ़े। इसलिए कृष्ण प्राप्ति करने के लिए कई फेल्योर, कई कुछ सामने आएगा, लेकिन हमारा एंडीवर जारी रहना चाहिए। एंडीवर में कभी हम लोग हटना नहीं चाहिए। हाँ, आज फेल हो गया मैं, ठीक है, कोई बात। इसलिए बोला गया फेल्योर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। पिलर बनाता है सक्सेस के लिए। हाँ? तो इसलिए विश्वामित्र मुनि जो है, कई बार वो अपने प्रयास में फेल तो हुए। जैसे मेनका जी को भेजे इंद्र जी ने, उसमें भी फेल हुए। रामभाव जी भी आए, कई बार वो फेल्योर हुआ, लेकिन वो फाइनली सक्सेस भी हुई। उनको ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त हुआ। तो इसलिए यहाँ पे ये बताया जाता है कलयुग में स्पेशली हम लोग अष्टांग योगा सिद्धि या फिर मेडिटेशन, उसमें हम लोग कभी परफेक्शन की प्राप्ति नहीं कर सकते। कलयुग का क्या है? युग धर्म संकीर्तन यज्ञ। जितना हम संकीर्तन करेंगे, नाम यज्ञ करेंगे, उसमें उतना परफेक्शन। भगवान का नाम लेना, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम राम हरे। राम राम हरे हम हरे। लोग देखें वैसे ही परफेक्ट पर्सनालिटी श्रील हरिदास ठाकुर। श्रील हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम लेते थे एक दिन में। पूरा दिन रात ही वो चैंटिंग करते थे। अगर आप हिसाब लगाएंगे 3 लाख नाम लेने के लिए 24 घंटा लगता है। और उस 24 घंटे में वो थोड़ा सा प्रसाद लेते थे, 2 वक्त प्रसाद लेते थे, और बाकी समय चैंटिंग करते थे। ऐसे पर्सनालिटी जो श्रीला हरिदास ठाकुर, उनको भी उनके मार्ग में भी कई अड़चने आई, लेकिन उनको फेल्योर नहीं हुआ कभी, क्योंकि वो योग धर्म में इतना डिटरमिन थे। हाँ, हरिनाम संकीर्तन में उनको कभी परेशानी। उनके पास भी माया देवी को भेजा गया था। रामचंद्र खान जो बड़े एनवियस थे, चैतन्य भागवत में बताया गया है। रामचंद्र खान उस समय तहसीलदार थे। तो उन्होंने भेजा एक, जो हम तो वेश्या तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो माता जो थे बड़े भक्त बन गए बाद में हरिदास ठाकुर के संस्पर्श में आकर। वो माता जो थे उनको रामचंद्र खान ने भेजे कि आप जाके हरिदास ठाकुर के तपस्या को भंग करो। वो आई, आके उनका उनका पेशा था वेश्यावृत्ति, लेकिन वो आए, आके हरिदास ठाकुर को बहुत प्रयास किए। लेकिन हरिदास ठाकुर उनको बोले आज मेरा चैंटिंग पूरा होने दो, फिर हम जो आप चाहिए, आपको जो इच्छा है हम करेंगे पूरा। फिर वो चैंटिंग करते रहे, वो बैठ के सुनती रही, वो माता जी बैठ के सुनती रही। हाँ, फिर उस दिन रात खत्म हो गया, फिर वो चली गई अपने यहाँ। फिर नेक्स्ट डे आई, फिर वही चीज बोली, तो हरिदास ठाकुर बोले कि हमको और
चैंटिंग करना है, 3 लाख नाम मेरा पूरा करना है। अगर हम नहीं कर पाएंगे तो हमारा बड़ा प्रॉब्लम होगा। 3 लाख का नाम मैं पूरा कर लूं, फिर आपका मैं जो इच्छा जो डिजायर मैं पूरा करूँ। फिर वो चैंटिंग करते रहे, रात खत्म हो गया, सुबह ऐसे ही तीसरा दिन भी हो गया, तीसरा प्रहर हो गया, 1 2 3 3 रात तक माता जी ने सुनी हरिदास ठाकुर के मुख से हरिनाम का चैंटिंग, हरिनाम का श्रवण। सुनते सुनते उनके हृदय में बड़ा परिवर्तन हुआ, और तीसरा रात जब खत्म हुआ, सुबह ही उन्होंने हरिदास ठाकुर जी के पांव में गिर गई, गिरकर माफी मांगने लगी। बड़े आंखों से आंसू निकल रहा था, बड़ा आंसू बहाकर रोने लगी, रो रो के माफी मांग रही थी। मैं इतना हीन प्रकृति के हूँ, आपको मैं नीचे दिखाने के लिए आई थी, मुझे क्षमा कर दीजिए। बहुत बड़े रो रो के क्षमा मांगी। फिर हरिदास ठाकुर उनको दीक्षित भक्त बनाए, हरिनाम से दीक्षा दिए। हरिनाम दीक्षा देने के बाद उन्होंने वो आश्रम त्याग करके उनको आश्रम का ये बनाकर चले गए, और उन्होंने इतने बड़े भक्त बन गई वो। सब अपना घर में जितना सामान था सब ब्राह्मणों को दान देकर उस आश्रम में आ गई, और वहां पे तुलसी देवी का सेवा की और हरिनाम का उच्चारण किया। इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगी। वो भी 3 लाख नाम लेने लगी दिन रात, और इतने बड़े भक्त बन गई। जो पहले वेश्यावृत्ति में थी वो माता जी, लेकिन इतने बड़े भक्त बन गई, दूर दूर से कई योजन से लोग आते थे उनसे मिलने के लिए, उनके परामर्श लेने के लिए, उनके सानिध्य प्राप्त करने के लिए। तो ऐसे व्यक्तित्व होते हैं। तो इसलिए ये जो यहाँ पे यमुनाचार्य भी बता रहे हैं, जो कृष्ण भक्ति में संपूर्ण रूप से अपने आप को लगा दिया है, उसको कोई प्रॉब्लम। लेकिन हमको हम जो युग धर्म है उसी को लेकर उसी के साथ चलकर कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। कलयुग का युग धर्म है चैंटिंग, हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन, कीर्तन, हरिनाम का कीर्तन, और उसके साथ साथ भगवान के गुण का कीर्तन करना, वो भी संकीर्तन है। तो इसलिए नाम संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन ही ये यज्ञ है। ये यज्ञ जो है कलयुग के लिए ही है, इसलिए इसको जो करते हैं वो धीरे धीरे अपना परफेक्शन को प्राप्ति करते हैं। तो इसलिए हम लोगों को ये एंडेवर हमेशा करनी चाहिए। कैसे? मेरा नाम कीर्तन जितना मैं पढ़ लिया हूँ, अगर मैं 2 माला का भी पढ़ लिया हूँ उसको पूरा करना है, 4 माला का भी पढ़ लिया हूँ उसको भी पूरा करना है, अगर 16 माला भी करना है उसको भी पढ़ लिया हूँ तो करना है। ये डिटर्मिनेशन, जैसे हरिदास ठाकुर जी अपना डिटर्मिनेशन में स्ट्रांग थे, इसलिए उनको कोई भी माया उनको परास्त नहीं कर पाया, उनको कंप्लीटली सरेंडर टू कृष्ण। इसलिए भगवान कृष्ण के चरणार बिंद में शरणागति होकर हमेशा हम लोगों को ये भगवान का नाम कीर्तन और भक्ति डिफरेंट वे में भक्ति करनी चाहिए। हमारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। कभी कभी फेल्योर भी आ सकता है, लेकिन हमारे एंडीवर को जारी रखनी चाहिए। हमारा जो प्रयास है उससे हटना नहीं चाहिए। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। थिंक आत्माराम प्रभु इज नॉट देयर। अरविंद प्रभु, हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। प्लीज स्पीक। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी के चरणों में कोटि प्रणाम। आए सभी भक्तों के चरणों में कोटि नमन। हरे कृष्ण प्रभु जी। आज भगवान श्री कृष्ण बतला रहे हैं कि मेरी माया जो है वो कितनी प्रबल है, मेरी माया कितनी प्रबल है। ये जो भक्ति है इसमें मेरी माया में वही
लोग नहीं फंस सकते हैं प्रभु जी, जो भक्ति मेरी भक्ति करता है, जो मेरी भक्ति में लीन रहेगा, जो मुझ में लीन रहेगा, उसको मेरी माया नहीं पछाड़ेगी। ये मेरी माया इतनी प्रबल है कि इसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि भी फंस के अपनी तपस्या को खंडित कर देते हैं। मेरी माया कितनी प्रबल है। आज हम लोग ने पढ़ा कि प्रभु जी बता रहे थे कि एक बच्चा के बारे में कि मतलब उसकी कितनी आकांक्षा होती है खेलने की, कितनी आकांक्षा होती है उसको कि मैं जाऊं बाहर में खेलूं। उनके माँ पापा बोलते हैं कि बेटा पढ़ाई करो, परीक्षा है, नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा। बच्चा नहीं मानता है, उसको खेलने में बहुत आनंद आता है, वो खेलता है। जो परीक्षा का रिजल्ट आता है तो उसे बहुत अफसोस होता है। तो उसी तरह से हम लोग का जो माया है, हम लोग के अगर पास में ये भक्ति में ज्ञान नहीं रहेगा तो हम लोग माया में लिपटे रहेंगे और अपने ये चैटिंग जो करते हैं इससे हम निर्वृत्त हो जाएंगे, फिर प्रभु से मुक्त हो जाएंगे। फिर हमारी परेशानियाँ, हमारा दुख हमें पीछा नहीं छोड़ेगा, फिर दुख लगा हुआ ही रहेगा। प्रभु का बहुत बड़ा माया जाल फैला हुआ है कि हम लोग अभी चाहते हैं सुबह में उठे, हरि कीर्तन में लगे, फिर माया कहता है छूतो न छोड़ा देर क्या होगा, अच्छे आज नहीं ये किए तो क्या हुआ, 26 जनवरी है, अच्छा कल से आ जाएंगे, कल से चैटिंग करेंगे, कल से हो जाएगा, आज छोड़ देते हैं, आज काम उम है। लेकिन नहीं, प्रभु के दरबार में रोज हाजिरी होनी चाहिए। कौन कहे कल की खबर नहीं है पल की, क्या हो जाएगा कब। कोई जानता था कि इतना बड़ा प्लेन एक्सीडेंट हो जाएगा। वो लड़का कितना खुशी खुशी चैटिंग कर रहा था कि मैं अब लैंडिंग करने वाला हूँ, अब मैं अपना घर पहुंच जाऊंगा, लेकिन पल में प्रलय हो। तो प्रभु की स्मरण में हमेशा जप ध्यान होना चाहिए। अगर हम उनमें लगे हुए रहेंगे, उनकी भक्ति में लगे हुए रहेंगे, तो सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जितने भी सारे मुझे बाधा आने वाले हैं वो बाधा ऑटोमेटिक खत्म होते रहेगा और हमें पता भी नहीं चलेगा कि मेरा बाधा कहाँ से कहाँ चला गया। जिस तरह से मैंने एक बार बताया भी था कि कहा भी था कि एक भक्त जो था वो किस भक्ति में इतने लीन थे कि अपनी ड्यूटी का भी उसको ख्याल नहीं रहा और प्रभु की भक्ति में इतने लीन थे। और देखिए प्रभु जी को उनका ड्यूटी करना पड़ा, प्रभु जी ने उनके जाकर ड्यूटी किया। तो इससे हम लोग को यही ज्ञान मिलता है प्रभु जी कि वो किस तरह का भक्ति था जिसमें उसको शुद्ध नहीं रहा कि मुझे अपने काम पे जाना है। भक्ति इसी को कहते हैं, भक्ति में लीन इसी को कहते हैं। भक्ति में ऐसी भक्ति होनी चाहिए जिसमें प्रभु में मिल जाए, प्रभु प्रभु हम एक ही होए, बाकी बजे दूजा न कोई। तो फिर उसका आनंद ही कुछ और आता है, बहुत ही आनंद आता है उसमें हमको, बहुत जो है। और एक भक्ति की सबसे बड़ी बात यह भी है प्रभु जी कि आपने जो बताया, आज हम लोगों ने श्रवण किया कि टाइम टेबल, हम किसी चीज़ में जुड़े उसमें टाइम टेबल का बहुत ही बड़ा महत्व है। जिस तरह से कि अगर हम टाइम से अगर कुछ नहीं करते हैं तो हम थोड़ा पीछे हट जाते हैं। इस तरह से मान के चलिए मॉर्निंग में उठना है इतना बजे, आलस कर लेते हैं, नहीं उठ पाते हैं और टाल देते हैं उस काम को अगले दिन पे। तो इससे जो है हम लोगों का हानि होता है। टालना नहीं चाहिए, सभी को अपने टाइम पर प्रबंध रहना चाहिए, टाइम का ख्याल रहना चाहिए। कृष्ण भक्ति में प्रभु जी बताते हैं कि कल इस बात में चर्चा हुई थी कि आप अगर भक्ति में जुड़े रहेंगे तो भक्ति में जुड़े रहेंगे तो आपका क्या होगा, क्यों करना चाहिए भक्ति, क्यों जुड़ना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी पूछते हैं, बहुत सारे लोगों का कथन रहता है कि भक्ति क्यों करना चाहिए, अभी भक्ति क्या करने का समय है, अभी तो बहुत समय है, अभी भक्ति नहीं भी करेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, अभी भक्ति करने का कोई समय नहीं हुआ है, अभी खाओ पियो यश मौज करो, जब होगा बुढ़ापा देखा जाएगा उस समय कर लिया जाएगा।
ये सब काम बुरे लोगों का है। अभी हमारे शरीर में बहुत शक्तियाँ हैं, अभी हमको यश मौज करना चाहिए, दुनिया में रहना चाहिए। लेकिन प्रभु जी, इस दुनिया का आनंद में अगर कोई खुश है तो मैं बताए, इसके पास बहुत सारा संपत्ति है, बहुत दौलत है, वो बोले हम खुश हैं तो बताए क्यों लोग सारा संपत्ति छोड़ के भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाते हैं? क्योंकि वो जान जाते हैं कि इस सब दुख का ही कारण है, इसमें हमको दुख ही हासिल होगा, सुख नहीं होगा। मान लीजिए बहुत संपत्ति रच लिए, बेटा अनुकूल नहीं हुआ, दुख है। बहुत संपत्ति रच लिए, पत्नी अनुकूल नहीं हुआ, दुख है। तो वो लगा हुआ रहता है हमेशा। तो इस दुख से मुक्ति करने के लिए हम लोगों को भगवान कृष्ण पाद के ध्यान देना चाहिए, हमेशा कृष्ण भजन भक्ति करते रहना चाहिए, इससे हम लोग का कल्याण होगा। कल्याण के लिए हमेशा प्रभु भक्ति में लीन रहना चाहिए, क्योंकि दुख तब होता है जब कि भगवान की हम भक्ति कर रहे हैं और भगवान जो है हमारी सुनती नहीं है। भगवान हमारी कैसे सुनेंगे? भगवान हमारी कैसे सुनेंगे? जैसे कहावत भी बोलते हैं लोग, सब बोलते हैं, प्रभु जी मैंने सुना ऐसा, एक मन दो चीज तह मन तीत, मतलब एक मन दो चीज हो जाता है। मन कहीं है और चीज कुछ है तो उसका काम खराब हो जाता है। मन को एक जगह करना चाहिए, पहले मन को कंट्रोल करके तब जो है भक्ति करनी चाहिए, तब जाके हमको फायदा होगा। जैसे हम ध्यान में बैठे हुए हैं, ध्यान कर रहे हैं प्रभु का, और मन मेरा कहीं और भाग रहा है, मन कहीं और भरवन कर रहा है और हम यहाँ ध्यान में बैठे हुए हैं, तो वो बेकार हो गया, उसका फल हमें तब पूरा प्राप्त नहीं होगा। ये प्रभु जी हमने सीखा। हरे कृष्ण प्रभु जी। Thank you very much. Beautiful. Hare Krishna. Kundan. हरे कृष्णा सर, थैंक यू सर। सर ने ऑलरेडी बहुत अच्छे से और ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है कि हम लोग का जो सेंसेज होता है वो हम लोग के कंट्रोल में नहीं होता है। अगर हम लोग माइंड जो हम लोग जब तक फिक्स नहीं करेंगे तब तक हम लोग जो है सेंसेज पे कंट्रोल नहीं पा पाएंगे। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी देखे, बहुत सारे जो ऋषि मुनि हैं, जिसमें विश्वामित्र का जो स्टोरी है वो बहुत फेमस है। और ऑलरेडी हम लोग ने सर ने बताया था भागवतम से कि जो भरत महाराज हैं वो भी लास्ट में इतने भगवान के प्रति वो हो गए थे, डिवोट हो गए थे, पूरा घर वगैरह सब छोड़ के चले गए थे। बट लास्ट में जो है वो एक हिरन का जो बच्चा होता है, डियर का जो बच्चा होता है, उसमें वो इतने जो होते हैं वो हो जाते हैं। और जो भगवान का जो, और बोला जाता है कि जो लास्ट में हम लोग जिस तरह से अपने माइंड को वो करते हैं वही हम लोग को नेक्स्ट बर्थ में हम लोग को मिलता है। तो सेंसेस जो है वो उनका जो है उनके प्रति चला जाता है, बट उनको सेकंड चांस मिलता है फिर वो। और हम लोग ये भी सीखते हैं इससे कि जब भगवान के प्रति हम लोग डिवोट रहते हैं, अगर हम लोग का सेंसेस थोड़ा सा भी अगर हम लोग का डिस्टर्ब होता है तो भी भगवान हम लोग को एक चांस देते हैं फिर से रीस्टोर करने का, और हम लोग फिर से अचीव कर पाते हैं भगवान का लोटस फीट। तो ये सब एग्जाम्पल से हम लोग सीख सकते हैं कि हम लोग को जो सेंसेज है वो अनकंट्रोल्ड है, उसको कंट्रोल लाने के लिए हम लोग को भगवान का शरण लेना चाहिए और उनका हमेशा लोटस फीट। और सबसे बड़ा जो योगदान होता है ABCD का, जो सर ने बताया था कि जो हम लोग का एसोसिएशन है वो कैसा है। अगर एसोसिएशन हम लोग अगर अच्छा नहीं होता है, तो जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ तो इंजीनियरिंग में बहुत सारे जो डिफरेंट जो गाली होते हैं वो जितना हर टाइम कहीं देने का मतलब एक अलग एक पैसन दिखता था। फिर धीरे धीरे जैसे ही लाइक यहाँ आने के बाद जो आसपास के जो एसोसिएशन है, जैसे अतुल सर हो गए लैब में, तो धीरे धीरे जो आसपास के लोग होते हैं वो आपको उस तरह से ही मोटिवेट करते हैं और अपना भी मन फिर गाली देने का या फिर कुछ भी है, या जिस तरह से आसपास के लोग रिएक्ट करते हैं, जैसे सर भी बहुत सारे चीज़ बताते हैं, तो हम लोग उसी तरह से जो है अपना इन्वायरमेंट और अपना जो बदलाव वो धीरे धीरे चेंज आता है। और फिर से हम लोग देखें तो बी जो है वो बुक रीडिंग है, जिससे हम लोग जो वैदिक स्क्रिप्चर है हम लोग को जितना श्रील प्रभुपाद जो लिखे हैं उसमें हम लोग थोड़ा बहुत भी अगर हम लोग पढ़ें तो
उससे हम लोग ये कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ा योगदान रहता है चैंटिंग का, जिससे हम लोग चैंट करते हैं और माइंड जो है हम लोग का फिक्स करते हैं, हम लोग चैंटिंग से कर सकते हैं। और डाइट का बड़ा योगदान होता है, जिसमें हम लोग जो है आसपास जितने भी दया, जो जितने भी भाव जो जगता है, वो डाइट से, जो जैसे मीट ईटिंग नहीं करना चाहिए, तो ये सब चीज़ें से हम लोग जो है अपने आप को चेंज कर सकते हैं और धीरे धीरे जो है अपना माइंड जो है फिक्स कर सकते हैं। और सर ने बहुत ही अच्छे से बताया कि जो है बहुत सारे जैसे ऋषि मुनि जो है एलिवेटेड जो होते हैं, वो भी इस सेंसेस की वजह से वो मतलब हम वो सेंसेस के कंट्रोल में ही रहते हैं। तो हम लोग को और भी सर ने बताया कि जो बींड होता है, वो जो एरोमा होता है, उसको भी वो बहा के लेके जाता है। उसी तरह से माइंड जो है जो हम लोग का उस तरह से ही जो सेंसेस, जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है, वो बहा के लेके जाता है। तो हम लोग कंट्रोल रखना चाहिए और भगवान के अगर चरण कमल में रहेंगे तभी हम लोग जो है अपने आप को बचा सकते हैं, जब जिस तरह का जो सिचुएशन होता है। जैसे हरिदास ठाकुर जो सर ने बेस्ट एग्जाम्पल दिया, जिसमें वहाँ पे वो डिस्टर्ब हो सकते थे, बट वो कृष्ण भक्ति में रहते हैं तो वो सामने वालों को भी उस तरह से ही चेंज कर देते हैं। तो हम लोग को उसी तरह से सीखना चाहिए कि हम लोग जितना हो सके कृष्ण भक्ति का वो करना चाहिए, तभी हम लोग अचीव कर पाएंगे चीज़ें। तो यही चीज़ आप देखिए सर। हरे कृष्ण। थैंक यू कुंदन, ब्यूटीफुल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रियेश आ जाए है। प्रियेश, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सर। तो आज हम लोग ने देखा कि श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि हमें हायर टेस्ट की ओर अचीव करना चाहिए। जनरली हम जो होते हैं कि हमारा जो सेंसस है उन्हीं में इंडल्ज रहते हैं और सेंसस के कंट्रोल में रहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि अगर तुम हायर टेस्ट को अचीव करोगे और तो तभी इन सेंसस से मुक्ति पा सकोगे। और वो तभी पॉसिबल है जब तुम मेरी शरण में आओ। बिकॉज सर ने पहले ही बताया कि हम जो सेंसेस का कंट्रोल सिर्फ ऐसे ही इंडिपेंडेंटली हम छोड़ नहीं सकते, हमें कहीं ना कहीं इन्हें डिवोट करना पड़ेगा। और ये सेंसेस का डिवोशन हम अगर श्री कृष्ण की उसमें करें, कृष्ण कॉन्शियसनेस में करें, तो हमारे लिए बहुत ही इजी होगा। वरना इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ दिस सेंसेस। जैसे सर ने बताया कि जो हमारे से जो जीव होती है, जो जब हम हमेशा सोचते रहते हैं ये खा लेते हैं या फिर ऐसे एंजॉय कर लेते हैं, तो इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है until unless जैसे हम चैंटिंग करते हैं, तो उससे हमें हेल्प मिल सकता है। जितना चैंटिंग करें, जितना डिवोटीज के एसोसिएशन में रहें, वैसे ही हमारा जो है रूटीन हमारा चेंज होता है। जैसे सर ने बोला कि जनरली मेरा क्लास छूट जाता है मोस्टली, लेकिन अब ट्राई करता हूँ ज्वाइन करने का। तो जैसे जैसे अगर हम फेल भी होते हैं तो हमें ट्राई करना चाहिए, स्ट्राइव करना चाहिए कि हम जितना हो सके डिवोटीज के बीच में और कृष्णा कॉन्शियस के रास्ते पे चल सके। तो आज यही सीखे सर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस, ब्यूटीफुल। थैंक यू। हरे कृष्णा। अभिनव। हरे कृष्णा सर। यहाँ पे थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज है, लेकिन हमने पढ़ा आज कि लास्ट क्लास में हमने इम्पोर्टेंस ऑफ सेंस कंट्रोल के बारे में पढ़ा था, और सेंस को वश में रखना, कैसे वश में रखे, इसके बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल आवर सेंसेस, क्योंकि हम लोग एडिक्टेड हैं मटेरियल एंजॉयमेंट से, और ये एडिक्शन के कारण भी हम लोग अपने सेंसेस को कंट्रोल में नहीं रख पाते हैं। और आज के क्लास में हमने एग्जाम्पल में दिया गया है कि जिस प्रकार जो विंड है वो अरोमा को अपने साथ बहा कर ले जाती है, उसी प्रकार जो हमारी इंद्रियां हैं वो हमारे मन को अपने साथ बहा कर ले जाती है। इसलिए इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल आवर सेंसेस। और जब हम अपने जो सेंसेस हैं, जो 5 सेंसेस हैं, उनको कंट्रोल करेंगे, तभी हम मतलब अपने मन को कंट्रोल कर पाएंगे। और हमने विश्वामित्रा मुनि के एग्जाम्पल से भी देखा कि वह भी एक बार अपने मार्ग से भटक जाते हैं, पर हम देख सकते हैं कि
वो कोशिश नहीं छोड़ते हैं और अंततः उनको भी सक्सेस प्राप्त होती है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि यद्यपि बहुत डिफ़िकल्ट है अपने मन को कंट्रोल में करना, लेकिन अगर हम कॉन्स्टेंटली प्रयास करते रहें, तो अल्टीमेटली हमें सक्सेस ज़रूर मिलती है। और हरिदास ठाकुर के एग्ज़ाम्पल से भी हमने यही देखा। और हमने देखा कि ये मतलब अपने सेंसेस को कंट्रोल करना तभी पॉसिबल है जब हम किसी ऐसे टेस्ट को एक्सपीरियंस करें जो सारे जो मटेरियलिस्टिक प्लेजर के टेस्ट है उससे अधिक श्रेष्ठ हो। और ऐसा हायर जो टेस्ट है वो बस प्रभु भक्ति में मिल सकता है। तो जब हम एक्चुअल में खुद को प्रभु भक्ति में लगाएंगे तो हो सकता है कि एक दो बार हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो, लेकिन जैसे जैसे हम लोग स्पिरिचुअली एलिवेटेड होते जाएंगे तो एक स्टेट आएगा जब हम अपने सेंसेस को कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये हमने पढ़ा सर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा अभिनव, थैंक यू, ब्यूटीफुल। हरे कृष्णा पीयूष। हरे कृष्णा सर। तो हम लोगों ने जो है कल भी ये पढ़ा था कि जो हम लोग जो डेली लाइफ के अंदर जो सेंस ऑब्जेक्ट के जो टेस्ट लेते रहते हैं उसकी वजह से हम लोग जो है अपने मन को अपने सेंसेस को जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाते। तो वो तभी जो है हम लोग उनको कंट्रोल कर पाएंगे जब हम लोग जो है हायर टेस्ट जो है वो प्राप्त करें, और वो सिर्फ और सिर्फ भक्ति के माध्यम से ही पॉसिबल है। और आज जो है हम लोग पढ़ रहे हैं सर कि हम लोग को जो है जो हमारे शास्त्रों के अंदर जो दिया गया है, जो भगवान ने जो है हम लोग को बताया है, उस हिसाब से जो है हम लोग को जीवन में जो है वो चलना चाहिए और कर्म जो है वो करना चाहिए। और हो सकता है कि उन पर चलने से जो है हम लोग को कष्ट प्राप्त हो, मगर वो जो कष्ट है वो आगे जाके जो है लाभ ही देगा। और भगवान जो है यहाँ पे बता रहे हैं कि इसका जो अगर जब हम लोग इस चीज को जो प्रयास करेंगे तो इसके अंदर हम लोग जो है वो कभी कभी हम लोग वो फेल भी हो सकते हैं, मगर जो हम लोग का जो प्रयास है वो उसको जो है हम लोग को छोड़ना नहीं चाहिए। और इसलिए जो है हम लोग को ये प्रयत्न करना चाहिए कि जो हमारी जो इंद्रियां हैं उस पे जो है हम लोग जो है वो कंट्रोल करने का जो है निरंतर हर दिन जो है वो प्रयास करें। और यहाँ पे जो है प्रभुपाद जो है हम लोग को विश्वामित्र जी का जो है वो एग्जाम्पल देके बता रहे हैं, और सर ने भी जो है हरिदास ठाकुर जी का भी एग्जाम्पल देके बताया। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से जो है विश्वामित्र जो है वो कई बार जो है वो अपने प्रयास के अंदर जो है वो फेल हुए, मगर जो है उन्होंने वो प्रयास करना नहीं छोड़ा, और अंत में जो है जाके जो है उनको जो है ब्रह्म ऋषि का जो वो पद जो है वो प्राप्त हुआ। और जो है हम लोग को जो अपनी इंद्रियां हैं उनको जो है वो भगवान की सेवा के अंदर जो है वो लगाना चाहिए। और कल भी जो है हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है कि अपने जो हमारी जिह्वा है उसको जो है हम लोग कंट्रोल करना सीखें। और उस जिह्वा को जो है हम लोग तभी जो है वो कंट्रोल कर पाएंगे जब हम लोग जो मैक्सिमम टाइम जो है वो भगवान का नाम लें, और भगवान के नाम का जो है वो जप करने में जो है हम अपने जिह्वा को लगाए। और जो है इस आज के पर्पज से हम यही देखें सर। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्णा, थैंक यू पीयूष, ब्यूटीफुल। We will stop here today. Hare Krishna. So,